It is with a great pleasure that we welcome Harsh Kansal sir, a distinguished alumni who has made significant stride in the field of technology. Harsh sir is an incredibly talented individual known for his passion for learning, technical skills and dedication. He earned his Bachelor of Technology degree in Computer Science and Engineering from Ajay Kumar Garg Engineering College, Ghaziabad, batch 2023, where he was the first year topper and secured a silver medal for achieving the second rank in his branch. Currently, Harsh Sir serves as a Power Platform developer at Celebral Technology Private Limited, Jaipur, where he has demonstrated outstanding skill in Power Apps, Power Automate, C Sharp, and JavaScript over the past 1 year and 8 months. His technical expertise and love for sharing knowledge and helping others have grown and earned him clients and senior management appreciation for consistently delivering high quality work. Beyond his personal achievements, Harsh Sir is deeply invested in personal developments and spirituality, always striving to involve both personally and professionally. His journey inspires us all, and we are excited to have him share his insights and experiences with our VSL team members today. Harsh Sir, over to you. Thank you, Malvika. Jai Hind, everyone. I'm very happy to be with you all, and I want to thank VSL for this opportunity so that today I joined with you all. Apart from the introduction that Malvika gave, I want to share some points with you that I joined VSL during my fifth semester of my college, and I had done few workshops in VSL. One of them is mutually fulfilling communication workshop, and I also attended some sessions in VSL just like the session of BK Sangeeta Didi on relationships and strengthening immunity with healthy lifestyle by Dr. T. Sundra Raj Tharmal. I had also been the part of this event, and I had also attended the sessions conducted by Gopal sir on observing self by the self. Now, if I talk about my learnings and key takeaways during my journey in VSL. So one point which is very important for me in today's professional life as well is values and skills are complementary to each other. तो आज की डेट में हम जो ये देखते हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट के लिए सब अपने स्किल्स पे बहुत फोकस करते हैं तो उसके लिए फर्स्ट ईयर से ही स्किल्स पे फोकस करने लग जाते हैं टेक्निकल से स्किल्स पे कम्युनिकेशन स्किल्स पे लेकिन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम अपना थोड़ा सा समय वैल्यू पे भी दें तो इक्वली इंपॉर्टेंट है हमारे लिए एंड वो आप इन सेक्शंस के थ्रू देख भी सकते हैं तो इसीलिए अभी भी इन माई प्रोफेशनल लाइफ में स्किल्स के साथ साथ इक्वली टाइम वैल्यूज पे भी देता हूँ सो दैट मेरी आगे की लाइफ और प्रेजेंट लाइफ हेल्दी रहे और हैप्पी रहे अपार्ट फ्रॉम दिस जो एक अच्छी लर्निंग है एंड मैंने देखा उस पर आज भी सेशन में चर्चा हो रही थी वो प्री कंडीशनिंग सेंसेशन एंड नेचुरल एक्सेप्टेंस के बीच में डिफरेंस तो जो VSL ज्वाइन करने से पहले मैं भी मोस्टली गवर्न अपनी प्री कंडीशनिंग और सेंसेशंस के द्वारा ही होता था और ऐसा नहीं अभी भी नहीं होता अभी भी होता हूँ लेकिन अब उनकी स्ट्रेंथ कम हो गई है अब मोस्टली गवर्न जो है नेचुरल एक्सेप्टेंस के द्वारा करने की कोशिश करता हूँ मैं एंड कुछ फीलिंग्स के बारे में आपसे कहना चाहूंगा मैं VSL में रहते हुए हमने फीलिंग्स का मेन मीनिंग समझा है क्योंकि जब हम अपनी जनरल लाइफ में तो हम लव को ट्रस्ट को रेस्पेक्ट को इन सब चीजों को उस वे में समझते हैं जो यूट्यूब पे या फिर जो जनरली हम पहले से समझते हैं लेकिन VSL के दौरान जर्नी के दौरान मैंने इनका करेक्ट मतलब समझा कि लव मीन्स वननेस एंड ट्रस्ट मतलब क्या होता है इंटेंशन और कॉम्पिटेंस के बीच में डिफरेंस क्या होता है जनरली हम क्या सोचते हैं कि सामने वाले की इंटेंशन ही सही नहीं है या उसने जान रहती है मेरे लिए आपके लिए सबके लिए सेम रहती है जो डिफरेंस होता है वो बेसिकली कॉम्पिटेंस का होता है एंड म्यूचुअली फुलफिलिंग कम्युनिकेशन वर्कशॉप जो मैंने अटेंड करी थी उसका मेरी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल आज भी रहता है ड्यूरिंग द क्लाइंट मीटिंग्स एंड ड्यूरिंग द मीटिंग्स विद मैनेजर्स इंटरनल कॉल्स या जो मेरी फ्रेंड्स के साथ टॉक्स होती हैं उनमें भी एंड एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके साथ शेयर करना चाहूंगा वो राइट यूटिलाइजेशन के लिए तो आज की डेट में हम देखते हैं कि हम फीलिंग्स दूसरों से फीलिंग्स की कोशिश करते हैं कि दूसरा हम पे अटेंशन दे हम अगर कभी अच्छे कपड़े पहन के जा रहे हैं किसी पार्टी में तो हम कोशिश करते हैं कि जो है वो हमें कुछ अच्छे व्यूज दे हमारे बारे में कि यार तो तुम अच्छे लग रहे हो क्या बात है और उससे हम जो है फील करने की कोशिश होते हैं करते हैं लेकिन यही मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन सब से आप बस टेम्पररी हैप्पी हो सकते हो परमानेंट इनका कुछ नहीं है मान लीजिए किसी ने आपसे कह दिया कि 10 लोग एक पार्टी में गए 10 लोगों ने तो जो आपकी अच्छाई कर दी वहीं एक ने कहा कि नहीं अरे यार पार्टी के हिसाब
से कपड़े तो अच्छे नहीं लग रहे, तो बस अब वो जो 10 लोगों के अच्छा ही है वो सब आप भूल जाओगे। तो इसीलिए यहाँ पे आपको चीजों को समझना चाहिए कि उनका राइट यूटिलाइजेशन क्या है। जैसे कपड़े हैं तो उनका राइट यूटिलाइजेशन यही है कि बस वो आपके बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो आपको हैप्पी करने के लिए, या जो है आपकी हैप्पीनेस के लिए नहीं। सिमिलरली आज रिसेंटली iPhone 16 लॉन्च हुआ है, तो ज्यादातर लोग क्या है कि उसके पीछे कि भाई हमें तो ये खरीदना है, उससे जो है हमारा सोसाइटी में स्टेटस अपग्रेड हो जाएगा, लोग हमारी तारीफ करेंगे, उससे आपको हैप्पीनेस मिलेगी, लेकिन वो भी टेम्पररी होगी। और अगर उस मोबाइल फोन को आप लोन लेकर खरीद रहे हैं तो फिर जो है आप अपना ही बुरा कर रहे हैं, क्योंकि जो है अगर आप के पास पैसे हैं और आप खरीद सकते हैं तो वेल एंड गुड, कोई दिक्कत नहीं उसमें। लेकिन अगर आप लोन लेके खरीद रहे हैं बिना उसका राइट यूटिलाइजेशन अंडरस्टैंड करें तो फिर वहां पे एक प्रॉब्लम है। एंड यही एक इम्पोर्टेंट पार्ट है हेल्थ का। तो जैसा कि आप लोगों ने भी अपने सिलेबस में भी पढ़ा होगा कि हेल्थ जो है वो होल्ड करता है 1/4 पार्ट इन द पाथ ऑफ कंटिन्यूस हैप्पीनेस। तो वी सेल में आने के बाद हेल्थ का क्या प्रोग्राम है और उसकी क्या इंपॉर्टेंस है वो समझ में आया, जिसके बाद से मैंने अपनी हेल्थ पे फोकस करना चालू भी करा, और उसका मैंने कुछ टाइम में अच्छा खासा रिजल्ट भी देखा अपनी हेल्थ पे। एंड जैसा कि अभी गोपाल सर इसके बारे में डिस्कस कर ही रहे थे, रिएक्शन एंड रेस्पॉन्स के बारे में, तो इसके लिए दृष्टि इवेंट में भी अच्छा खासा इस पे डिस्कशन हुआ था। हम बहुत जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जबकि हमें रेस्पॉन्ड करना चाहिए जब हम दूसरे तक कम्युनिकेट कर रहे हैं या अपनी डेली लाइफ में भी। लेकिन ऐसा नहीं कि आज भी मैं हर बार रेस्पॉन्ड करता हूँ, रिएक्शन आता है, लेकिन हाँ उसको पहचान लेता हूँ, और कभी अगर जो है सेल्फ अवेयर नहीं हूँ तो फिर रिएक्शन में भी हो जाता हूँ। बाकी प्रोफेशनल लाइफ में वैल्यू एजुकेशन सेल का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, और मैं ये देख भी पाता हूँ। जस्ट लाइक दो तरह की अप्रोचेस वैल्यू एजुकेशन सेल बताता है, एक तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच, एक सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच। हम ज्यादातर क्या करते हैं, प्रॉब्लम ओरिएंटेड अप्रोच में फंस जाते हैं, जबकि जो सोल्यूशन ओरिएंटेड अप्रोच है वो होलिस्टिक अप्रोच है, तो उस पर हमें फोकस करना चाहिए, और ये मैं फोकस करता हूँ। जब आप अभी आप लोग सब, मैंने देखा जाता है आप लोग सब आईटी या इन सीएससी डिपार्टमेंट से थे, तो और आप सब लोग अपना प्लेसमेंट के लिए तैयारी कर ही रहे होंगे, तो वहाँ पे एरर्स भी आते हैं। तो ऐसे ही हमारे प्रोफेशनल लाइफ में जब हम चीजों को प्रोडक्शन पे डालते हैं तो वहाँ पे जब एरर आते हैं ना, तो काफी लोग क्या होते हैं, वो नर्वस हो जाते हैं कि अब इस एरर को कैसे रिजोल्व करेंगे। ऊपर से जो है क्लाइंट का भी दबाव आता है कि जल्दी से करो जल्दी से करो, फिर प्रोजेक्ट मैनेजर भी दबाव डालता है, प्रेशर डालता है कि भाई जल्दी से करो, इसको रिजोल्व करो। तो वहां पे हम क्या होते हैं, हम नर्वस हो जाते हैं। लेकिन वहीं हमें जो है चीजों को समझने की जरूरत है कि इसका सोल्यूशन क्या है। तो उन सब चीजों को, दबाव को छोड़ते हुए केवल सोल्यूशन पे अगर हम उसको फोकस करें कि हाँ ये एरर क्यों आ रही है और कैसे हम उसको सोल्व कर सकते हैं, उस पर फोकस करना चाहिए। बाकी जैसा मैंने आपको बताया, म्यूचुअली फुलफिलिंग कम्युनिकेशन वर्कशॉप, उसका बहुत अच्छा रोल है। एंड उसमें आई थिंक आप लोगों ने भी वो वर्कशॉप अटेंड करी होगी, जिसमें आप लोगों ने समझा होगा कि जो है नीड्स का क्या रोल रहता है। मतलब जब हम किसी से कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसकी नीड्स अंडरस्टैंड करने की जरूरत है, उसकी फीलिंग्स को समझने की जरूरत है, हमारी उसको कैसी फीलिंग्स है उनको समझने की जरूरत है। फिर उनसे फीडबैक के लिए भी अगर हम रिक्वेस्ट करते हैं या फीडबैक का भी देखते हैं, तो वहाँ पे उसका भी इम्पोर्टेंट रोल रहता है। क्योंकि जब हम किसी की प्रॉब्लम सोल्व करने में हेल्प करते हैं बाय जस्ट कम्युनिकेटिंग विद हिम और हर, तो एक सामने वाला भी समझता है और हमसे वो जोड़ने की भी कोशिश करता है बाद में। एंड पार्टिसिपेशन इन लार्जर ऑर्डर के बारे में भी ये आपसे बताना चाहूंगा। तो जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हमें लगता है कि बस हमें केवल अपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है या जो भी हमें टास्क मिला है। लेकिन जब हम प्रोफेशनल लाइफ में आते हैं तो हमें समझने की जरूरत है कि जो भी हम एप्लीकेशन क्रिएट कर रहे हैं, जो भी हम सॉफ्टवेयर क्रिएट कर रहे हैं, उसका होलिस्टिक में क्या असर होने वाला है। या अगर हम क्लाइंट को प्रोवाइड कर रहे हैं, वही ऑर्गेनाइजेशन यूज करने वाला है, तो हमें उसको इतना नहीं कि बस हमें फॉर द सेक ऑफ क्रिएटिंग एप्लीकेशन क्रिएट करके देना है, वो उसको किस तरह से यूज करने वाले हैं। उस हमारा मतलब ऐसा होता है कि जो है हम डेवलपर्स हैं तो हमने क्रिएट कर दिया वो बात ठीक है, लेकिन जब यूजर उसको यूज करने वाला है तो क्या वो अच्छे से यूज कर भी पाएगा। तो उसको कॉम्प्लेक्स ना बनाते हुए सिंपल बनाए। तो ये कुछ मेरे अभी तक के की टेक अवेज थे फ्रॉम वी सेल। तो अगर आप लोगों के कुछ क्वेश्चंस हो, कुछ इन पे व्यूज हो। Jai Hind, sir. जैन। Sir, I'm Rupa Kaushik from CS Hindi branch third year. So my हाँ question बोलिए। is, sir, आप before interview आपने प्री कंडीशनिंग्स को कैसे मैनेज किया था कि सर क्योंकि एनवायरनमेंट का प्री कंडीशनिंग पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ता है। सर आपने प्री कंडीशनिंग को अपने आपसे हैंडल कैसे किया था कि नहीं जो वो बता रहे हैं वो नहीं होगा, जो मैं फेस करूंगा वो होगा। थोड़ा सा इस क्वेश्चन को और एलाबोरेट करिए, क्योंकि प्री कंडीशनिंग का मैं समझा, लेकिन आप एग्जैक्टली क्या जानना चाह रहे हैं? कि आप यही जानना चाह रहे हैं कि जब इंटरव्यूअर क्वेश्चन करता है तो उस वक्त हमारी कुछ मान्यता रहती है कि अगर इसने ये सवाल पूछ लिया और मुझे इसका जवाब नहीं आता तो मैं कैसे हैंडल करूंगा। तो आप ये पूछना चाह रहे हैं या
किसी और सेंस में पूछना चाह रहे हैं? यस सर, ये सेंस में। हाँ, तो अगर जो है इंटरव्यूअर हमसे क्वेश्चन कर रहा है और किसी क्वेश्चन का आंसर हमें नहीं पता या फिर उस वक्त हमें रिकॉल नहीं आ रहा है, तो उसका पहले शांत रहो। इंटरव्यू के दौरान कोई हबड़ दबड़ करने की जरूरत नहीं है कि मुझे एकदम तुरंत ही इंटरव्यूअर ने क्वेश्चन पूछा और मुझे तुरंत ही छूट के आंसर दे देना है। ऐसा इंटरव्यू में जरूरी नहीं होता है। तुम उनकी उसको ढंग से समझो और उसे फिर अप्रोचेस बताओ। अगर तुम्हें किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो उसे कहो कि फॉर नाउ मैं अभी इसके बारे में नहीं जानता या इस टेक्नोलॉजी पे मैंने वर्क नहीं करा है ना, बट आफ्टर द इंटरव्यू मैं इसके बारे में सीखूंगा। इंटरव्यूअर को तुम्हारा एक लर्निंग अप्रोच दिखनी चाहिए कि तुम एक लर्नर हो या फिर एक एंथुसियास्ट हो लर्निंग में, तो उसको वो चीज दिखनी चाहिए तुम्हारे अंदर। तो तुम्हें इंटरव्यू के दौरान शांत रहना है और उसके क्वेश्चन को ढंग से समझना है। वो पूछना क्या चाह रहा है, किस सेंस में पूछना चाह रहा है, उनको समझना है। तो तुम्हें एक अच्छा कम्युनिकेशन स्टार्टिंग से अगर तुम बना के चलोगे, जब तुम इंटरव्यूअर तुम्हारा इंटरव्यू स्टार्ट हो रहा है, तो तुम्हारा आगे के इंटरव्यू के लिए वो बहुत अच्छा रहेगा। आई होप कुछ आंसर मतलब ये आपके क्वेश्चन को सोल्व कर पाया होगा। यस सर। जय हिंद सर। जय हिंद। सर मुझे ये पूछना था कि जैसे अलग अलग मतलब बच्चे होते हैं, उनके लिए अलग अलग वैल्यू का मतलब होता है, ठीक है? तो सर आपके अकॉर्डिंग सर वैल्यू का मतलब क्या होता है? और सर आप एक रियल लाइफ एग्जांपल दे सकते हैं आपके वर्किंग एनवायरनमेंट में जहाँ पर आपको वैल्यू एजुकेशन मतलब आपको बेनिफिट किया हो? देखो, वैल्यू का मतलब सबके लिए सेम सेम ही होता है, लेकिन हाँ उसको हम इंटरप्रेट अलग अलग तरीके से करते हैं। जैसा भी गोपाल सर समझा ही रहते हैं, नेचुरल एक्सेप्टेंस डेफिनेट रहता है, ऐसे ही वैल्यूज भी डेफिनेट है जो हम यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज की अगर हम बात करें तो, ठीक है। और आपने जो कहा था कि जो है एक इंसिडेंट, तो इंसिडेंट की अगर मैं बात करता हूँ, वैल्यूज एग्जैक्टली वैल्यूज से तो नहीं, लेकिन हाँ यहाँ पे रिएक्शन रिस्पॉन्स का मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे जैसे मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर रहा हूँ, तो क्लाइंट के साथ कॉल्स होती हैं, ठीक है। तो कभी कभार क्या होता है, क्लाइंट के साथ कभी कभार डेवलपर्स या प्रोजेक्ट मैनेजर्स थोड़े से कॉन्फ्लिक्ट हो जाते हैं उनके बीच में, मिसकम्युनिकेशन की वजह से या जो भी है। तो वहां पे अगर हम उनकी बातों को सुन के, क्योंकि देखो क्लाइंट क्या चाहता है कि जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं, हम उनको अच्छे से फुलफिल करके दें। जो भी वो ऐप बनवाना चाहते हैं या कुछ भी बनवाना चाहते हैं, डेवलप करवाना चाहते हैं, उनको हम अच्छे से बना के दें। तो उनकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो उनकी बातों को सुन के अच्छे से और समझ के तब हमें रिप्लाई देना चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा नहीं कि वैल्यूज की, ऐसा वैल्यूज बहुत सारी मतलब बहुत सारी होती हैं वैल्यूज, ऐसा नहीं। वैल्यूज पूरा एक टॉपिक है ना, तो उसको तुम्हें ऐसा नहीं कि लर्न करने की जरूरत है या इस तरह से कुछ, तुम्हें कुछ बेसिक रूल्स होते हैं या पॉलिसीज होती हैं जो कि तुम्हें यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज में पढ़ाई जाती है, और वो सबके लिए सेम रहती है और सब में पहले से इननेट रहती है। तो उन्हें बस तुम्हें यहाँ पे अप्लाई करने की जरूरत है, अवेयर रहते हुए। तुम्हें जैसा गोपाल भी बताया कि कोशिश करा जाए तुम अपने में अवेयर रहे, तो अपनी कंडीशन क्या है उस वक्त ये पहचानो कि तुम क्या एकदम रिएक्ट करने वाले हो क्या। अगर तुम्हें क्लाइंट कुछ कह रहा है या प्रोजेक्ट मैनेजर तुमसे कुछ कह रहा है, तुम्हारा टीम लीड तुमसे कुछ कह रहा है, या तुम्हें तुम्हें डांट रहा है या कुछ इस तरह से कर रहा है, तो वहां पे रिएक्ट ना होते हुए तुम्हें उसकी बात को समझना अच्छे से कि वो किस सेंस में कह रहा है, क्योंकि उनके ऊपर भी प्रेशर आता है तभी वो तुम्हें डांट। तो वहां पे अच्छे से अपनी कंडीशन को समझो कि उस वक्त तुम्हारी स्टेट क्या है, और फिर उस सिचुएशन में रेस्पॉन्ड करो। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। जय हिंद सर। जय हिंद। सर जैसे आपने फीलिंग्स और रिलेशनशिप के बारे में बताया और आपने वर्कशॉप भी किया है सर रिलेशनशिप पे, तो आप सर हाँ, उसका इस्तेमाल सर आप अपने वर्क लाइफ और सर फैमिली लाइफ में सर कैसे करते हैं सर? उससे आपको क्या इफेक्ट पड़ा है सर उससे? अच्छा, तो एक एग्जांपल के साथ ही बताता हूँ मैं इस बात को। जैसे ट्रस्ट की फीलिंग आप सब लोग जानते हैं ना, तो ट्रस्ट की फीलिंग में हम इंटेंशन और कॉन्फिडेंस की बात करते हैं कि कॉन्फिडेंस सबका डिफरेंट हो सकता है, लेकिन इंटेंशन सबका सेम रहता है ना। तो कभी कभार क्या होता है, जैसे घर, अगर मैं फैमिली लाइफ में बात करूँ, तो अगर हमने जैसे अपनी मम्मी से कहा कि भाई हमारे लिए आज मेरा ये खाने का मन हो रहा है, तो आप ये बना दो, है ना। और मम्मी घर के अलग अलग कामों में बिजी रहती है ना, तो जैसे उन्होंने बनाया, लेकिन गलती से उनसे नमक ज्यादा तेज हो गया या मान लो नमक कम रह गया उस डिश में, तो हमें क्या, हम उन पे गुस्सा करने लगते हैं कि एक तो मेरा मन था ये खाने का और आपने जो है जानबूझ के उसमें नमक तेज कर दिया या कम डाल दिया, और मेरा सारा मूड भी ऑफ हो गया। तो जनरली हम लोगों की ये जब हम उनके साथ, जब हम उनसे कुछ कहते हैं बनाने के लिए और अगर उनसे गलती होती है, तो हम बेसिकली उनके इंटेंशन पे वहाँ पे गलती निकालने लगते हैं कि आपने जानबूझ के ये काम करा है ना। और ऐसा मेरे साथ होता भी था पहले, है ना। लेकिन अब जब इसका अंतर मैंने समझा और अपनी लाइफ में भी इस्तेमाल करने लगा, तो अब मैं देख पाता हूँ कि उनके पास क्योंकि और भी काम थे, तो हो सकता है कभी कभार, कभी वो दो लोगों के हिसाब से नमक डल गया हो सकता है, या एक जने के अगर कम रह गया तो एक जने के हिसाब से डल गया। तो वहां पे उनको गलती ना बताते हुए, कि मतलब बस उनको ये बताओ, उनसे ये बात कम्युनिकेट करना जरूरी है कि हाँ मम्मी आज जो है जो आपने डिश बनाई थी इसमें नमक
कम या ज्यादा रह गया है, बस उनको एक फीडबैक दे दो। लेकिन हाँ, आपने जानबूझ के कर दिया तो वहां पे क्या है, तुम भी रिएक्शन में आ गए। अब अगर जो है मम्मी ऑलरेडी रिएक्शन में अगर हैं, क्योंकि जो उनके पास दो चार काम हो रहे हैं, या किसी ने उनसे कह दिया कि भाई ये करो, वो भी ऑलरेडी अगर रिएक्शन में है, तो वहां पे तुम्हारा भी पूरा दिन खराब हो जाएगा और उन तुम्हारी मम्मी का भी पूरा दिन खराब हो जाएगा। तो ये तो यहाँ पे अब मैं स्टेबल रहता हूँ, तो ये तो मेरा फैमिली लाइफ का। और वर्क लाइफ में ज्यादातर ऐसे इंसिडेंट आते ही रहते हैं जो कि मिसकम्युनिकेशन की वजह से क्रिएट होते हैं। तो वहां पे सामने वाले की बात को अच्छे से सुन के उसको अच्छे से कम्युनिकेट करना इंपॉर्टेंट रहता है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो जहाँ पे वही वी सेल ने हेल्प करा है, और वहां पे मैं अपने आप को भी स्टेबल पाता हूँ। जब प्लेसमेंट टाइम में सर आपको कभी ऐसा कोई घटना याद आती है कि काश अगर मैं बी सेल में हूँ तो मैं इससे बच पाया, ऐसा कुछ सर याद आता हाँ, एक है, जैसे आप लोग सब एक अच्छे पैकेज की नीड चाहते, एक अच्छा पैकेज आप सबको चाहिए ना, कोई चाहता है कि मुझे जो है 10 लाख, कोई 20 लाख, 50 लाख। लेकिन यहाँ पे सब पैकेज तो सोच लेते हैं, लेकिन क्या एक्चुअल में अपनी नीड को आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारी नीड कितनी है। तो वी सेल में रहते हुए मैं पूरी अपनी 100% नीड तो नहीं समझ पाता उस वक्त, लेकिन हाँ, एक परसेंटेज कि हाँ मुझे अभी इतने पैकेज की जरूरत है अपनी रिक्वायरमेंट्स को और अपनी फैमिली की नीड्स को फुलफिल करने के लिए। और दूसरा क्या होता है कि मान लो तुम्हारा 10 लाख का पैकेज लग गया, और अभी तुम्हारे दोस्त का या जो तुम्हारा फ्रेंड सर्कल है उसमें किसी दोस्त का जो है 10 लाख का नहीं लगा, लेकिन जैसे ही किसी फ्रेंड का तुम्हारे सर्कल में तुम्हारे से ज्यादा पैकेज लग गया, तो अब तुम्हारे अंदर जो है एक आग लग जाती है कि यार यह जेलसी क्रिएट हो जाती है कि मेरा तो अभी तक सबसे हाईएस्ट था, अब दोस्त किसी दोस्त का ज्यादा हो गया तो मुझे उससे ज्यादा पैकेज चाहिए। तो यहाँ पे भी वी सेल, क्योंकि वहाँ पे वी सेल में हमें यही सिखाया जाता है, और कि अपनी नीड्स को पहचानो, राइट यूटिलाइजेशन को पहचानो, और अपने बेसिस पे गवर्न करो कि तुम्हें क्या रिक्वायरमेंट है तुम्हारी। तो उस मेरे दोस्तों का भी मेरे से ज्यादा पैकेज लगा था, ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन वहां पे मैं स्टेबल रहा क्योंकि मुझे अपनी रिक्वायरमेंट्स पता थी। तो इस तरह से तुम इस सिचुएशंस को ओवरकम कर सकते हो। पूछ लो, कोई शर्माने वाली जरूरत नहीं है। मैं देखता हूँ ज्यादातर हम भी अपने टाइम पे जब सेशन ज्वाइन करते थे, उस टाइम पे अलुमनाई आते थे, तो हम भी स्टार्टिंग में शांत रहते थे कि अगर हमने ये क्वेश्चन पूछा तो हमारे साथ वाला क्या सोचेगा या बाकी मेंबर्स क्या सोचेंगे। सर हाँ, सर बोलिए। वी सेल ज्वाइन करने से पहले और वी सेल ज्वाइन करने के बाद में जरा में क्या चेंजेस आए? देखो, डी सेल ज्वाइन करने से पहले और बाद में लाइफ में एक ठहराव आता है और क्लैरिटी मिलती है, लाइफ में एक पर्पस क्लियर हो जाता है। ठीक है, तो अब जैसे वी सेल ज्वाइन करने से पहले हेल्थ की बिल्कुल भी क्लैरिटी नहीं थी, है ना। हेल्थ पे फोकस किया वी सेल ज्वाइन करने के बाद, क्योंकि वहाँ पे जो तुम्हारे कोर्स में भी सिखाया जाता है और वर्कशॉप में भी बताया जाता है हेल्थ का इंपॉर्टेंट रोल, और उसके लिए क्या रूटीन है या क्या लाइफस्टाइल हमें फॉलो करनी चाहिए। दूसरा, वैल्यूज पे ध्यान दिया, और जैसा मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि वैल्यूज और स्किल्स दोनों को साथ साथ लेके चलना चाहिए। तो वी सेल ज्वाइन करने से पहले मेरा केवल अपनी स्किल्स पे फोकस रहता था कि, या ये भी क्लियर नहीं था कि जो मैं प्रोफेशन लेने आ रहा हूँ वो क्यों लेने आ रहा हूँ। तो हमारे तो कॉलेज के स्टार्टिंग में एक वी सेल की एक वर्कशॉप हुई थी जब इंडक्शन प्रोग्राम के टाइम पे, तो वहां पे गोपाल सर ने वो सेशन लिया था। तो उसमें उन्होंने पूछा था कि सबसे पूछा था कि तुम क्या बनना चाहते हो, क्यों बनना चाहते हो। तो सबका एट द एंड समझ में आया कि जो भी सब बनना चाहते हैं वो हैप्पीनेस के लिए बनना चाहते हैं ना। तो वी सेल ज्वाइन करने से पहले ये भी था दिमाग में, दो चार चीजें घूम रही थी कि गवर्नमेंट जॉब की भी करनी है ना, जो, और अगर गवर्नमेंट जॉब नहीं लगी तो फिर जॉब कैसे लगेगी, या बिजनेस करना क्या करना है। तो लेकिन वी सेल में रहते हुए दौरान समझ में आया कि हाँ, अगर ये जॉब करनी है तो इसमें मेरा पार्टिसिपेशन क्या रहेगा, और मुझे ये जॉब क्यों ज्वाइन करनी है, मुझे अपने लिए कैरियर क्यों डिसाइड करना है। तो एक क्लैरिटी मिल जाती है, क्योंकि तुम चीजों को थोड़ा डीप डाइव करके सोचने लगते हो। जैसा भी किसी का एक क्वेश्चन भी था, ओवर थिंकिंग बहुत रहती है, मुझे भी रहती है और अभी भी रहती थी और अभी भी रहती है, लेकिन वहां पे उस पॉइंट के वो ओवर थिंकिंग रहती है इसलिए क्योंकि जो तुम्हारा थॉट है वो कंक्लूड नहीं हो पाता, वो एक थॉट की चेन्स बनती जाती है, एक थॉट से दूसरा थॉट कनेक्ट हो जाता है, तो एक चैन बन जाती है, और वो अगर कंक्लूड नहीं हो पाते तो वही ओवर थिंकिंग कहलाती है। तो ओवर थिंकिंग में भी बहुत हेल्प रहा है। और जब भी तुम्हारे साथ कोई ऐसा, अगर ओवर थिंक तुम्हें लग रहा है कि ओवर थिंकिंग है तुम्हें, तो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और उन चीजों को लिखने लग जाओ। फिर अगर तुम कड़ी से कड़ी मिलाओगे ना, तुम्हारा वो थॉट कंक्लूड हो जाएगा। और अगर जैसे स्टार्ट हुआ हो तुम्हारा थॉट तो, और इम्पोर्टेंट नहीं है तो उसको वहीं छोड़ दो, ना कि उसको एनालाइज करना या उसमें डीप डाइव करना। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जहाँ पे वी सेल ने बहुत हेल्प करी है। थैंक यू सर। वेलकम। Thank you so much, Harsh
sir, for taking the time to share your valuable experiences and insights with us today. We deeply appreciate the way you have integrated the principles learned from the society into your career and life. We look forward to have you with us again in the future and would appreciate you to continue your sharing, to share your knowledge and experiences in the upcoming sessions. Thank you so much once again for taking your time and with wisdom with us. Thank you, Gopal sir, for conducting such an insightful and engaging session. Your expertise and guidance made the discussion incredibly valuable. I also want to thank all the participants who joined the session. Your contributions and questions enriched the session and made it a great learning experience for everyone. Thank you so much.